We have already discussed about the parameters that affect the parameters about affecting negative feedback on the amplifier performances. First, we have covered the point gain of the amplifier, negative amplifier, gain of the amplifier on negative feedback always decreases with the feedback. That feedback would be a negative feedback. Then second, then gain stability. What is the effect of negative feedback on the amplifier of on gain stability? An important advantage of negative voltage feedback is that the resultant gain of the amplifier can be made independent of the transistor parameters or the supply voltage variations. So basically, AF is equal to AF, sorry, A divided by 1 plus this is the equation. So for negative voltage feedback is an amplifier to be effective, the designer deliberately makes the product A into B much greater than the unity. Therefore in the above relation, the relation 1 is this, can be neglected as we compare to AB, and the expression for the AB will be AF is equal to A1 plus A beta, which is equal to 1 by beta. It may be seen that the gain now depends only upon feedback fraction beta. On the characteristics of the feedback uh, circuit, as circuit is usually a voltage diffuser, therefore it is unaffected by a change in the temperature, variation in transistor parameters and frequency, that it will not be affected by, it will remain same whether there will be a change in temperature, whether there is a variation in parameters, whether there is a change in the frequency parameters. So hence the gain of the amplifier will be extremely stable, right? The next part is so what is the डिस्टॉर्शन. अब हमारे पास क्या है, डिस्टॉर्शन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टॉर्शन पे जो हमारे पास गेन का इफेक्ट पड़ेगा, दैट विल बी, कोई भी पावर एम्पलीफायर होगा विल हैव नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. क्यों होगा, क्योंकि उसमें लार्ज सिग्नल वेरिएशन होंगे. ठीक है, लार्ज सिग्नल वेरिएशन होने के कारण उसमें नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होंगे. तो नेगेटिव फीडबैक जो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक उस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस को रिड्यूस करेगा. ठीक है, और उसको हम मैथमेटिकली कैसे दे सकते हैं, दैट विल बी ड्राइवन एज डी एफ इज इक्वल टू डी वन प्लस बीटा डी. यहाँ पर जो डी एफ है दैट विल बी द डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, एंड जो डी है हमारे पास दैट विल बी जो हमारे पास डी एफ है, ठीक है, दैट विल बी the distortion in amplifier with the negative feedback, and जो D है that will be equal to distortion in the amplifier without any feedback. So it is clear that we're applying the negative feedback. It is clear by applying the negative feedback हमारे पास जो डिस्टॉर्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा. बाय दिस फैक्टर हमारे पास जो क्या होगा, डिस्टॉर्शन will be reduced, right? So next is uh, sorry. The next part is noise. Noise में हमारे पास क्या है, जब भी हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास एक एम्पलीफायर में क्या होता है, नॉइज होती है. नॉइज कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, हमें नहीं पता वो नॉइज कहाँ की है, कहाँ से आ रही है. ठीक है, किसी भी सिग्नल को अगर हमें सेंड करना है या रिसीव करना है, उसमें 101% कोई ना कोई तरीके की नॉइज होगी. So there are number of sources of noise in an amplifier. The noise n can be reduced by factor 1 plus a beta. In similar manner,
टू नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, जैसे ही नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में रिड्यूस होता है बाय वन प्लस ए बीटा फैक्टर के साथ, ऐसी नॉइज हमारे पास क्या होती है, रिड्यूस होती है बाय वन प्लस ए बीटा फैक्टर के साथ। तो हमारे पास जो नॉइज फैक्टर है एन एफ मतलब क्या होता है, नॉइज विद फीडबैक, एन क्या है, नॉइज विदाउट फीडबैक। So however it is necessary to increase the gain of to its original level by the addition of another stage, it is it is quite possible that overall system is noisier, जो overall system है that is noisier, ठीक है, the overall system is noisier and that it was at the start. If the increase in the gain can be accomplished by adjustment of the circuit parameters, then there will be definitely reduction in the noise which will result from the use of negative feedback. तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नॉइज होती है वो क्या होती है, वो रिड्यूस होती है बाय फैक्टर वन प्लस ए बीटा, राइट। So next part we are going to move is uh, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस पे हमारे पास जो इफेक्ट पड़ता है दैट इज कि हमारे पास जो भी सॉरी जो आउटपुट इम्पीडेंस है और इनपुट इम्पीडेंस है विद आल्सो इम्प्रूव, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है बाय फैक्टर ऑफ वन प्लस ए बी। जो भी हमारे पास फैक्टर प्रोवाइड किया है वन प्लस ए बी के साथ, उसके साथ क्या होता है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस जो होती है दैट इज इम्प्रूव, राइट। सो नेक्स्ट इज बैंडविड्थ। अब हमारे पास बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो दिखना है। बैंडविड्थ एंड गेन बैंडविड्थ दोनों का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो बैंडविड्थ इज बेसिकली द बैंडविड्थ इज बेसिकली द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हमारे पास क्या किस रेंज में हमारे पास जो सिग्नल है हमें प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है? तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है। ईच ऑफ द हायर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल इम्प्रूव बाय फैक्टर ऑफ वन, विल इम्प्रूव बाय फैक्टर ऑफ वन प्लस ए बीटा। हाउएवर जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इम्प्रूव होगा, ठीक है। और हमारे पास जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इफ f is equal to 1 plus a beta, an important piece of information can be obtained from frequency response curve is the bandwidth of the amplifier, ठीक है। This still lies at the band of frequencies, और हमारे पास बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब लो फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या, हमारे पास सिग्नल बनता है, ठीक है। Outside the use of band, the gain of the amplifier is considered to be insufficient compared with the gain at the center of the bandwidth. The bandwidth specified for the voltage amplifier is the range of the frequencies for which the amplifier gain is greater than what? Greater than 0.7. The maximum gain. Alternative decibels are used to indicate the gain and the ratio of the output to input voltage. The useful bandwidth would be described as extending to those frequencies at which gain is minus 3 dB. Whether you are late. Hello. So the next is क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास चार तरीके की क्लासिफिकेशन होती है जो हमने एनालॉग सर्किट में पढ़ा है। दैट इज वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, राइट। तो ट्रांस वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो गेन होगा दैट विल बी वोल्टेज। करंट एम्पलीफायर में जो गेन होगा दैट विल बी ऑफ करंट गेन। ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द रेजिस्टेंस, तो ऐसा याद रखना है कि कंडक्टेंस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द रेजिस्टेंस एंड ट्रांस रेजिस्टेंस एज वी ऑल नो वी अपॉन आर, राइट। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिस इज जस्ट ओवरव्यू। आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये डायग्राम दोबारा ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। कि हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है इसमें वोल्टेज एम्पलीफायर में दैट इज वेरी 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 हाई देन
the source resistance and the output resistance होता है that is very very low than the load resistance. Then the current amplifier, इसमें जो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है वेरी वेरी लेस देन source resistance, and the output resistance होता है that is very 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 greater than the load resistance. Then the transconductance amplifier, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर में क्या होगा, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर में हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा दैट इज वेरी वेरी हाई देन सोर्स रेजिस्टेंस, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा वेरी वेरी हाई देन लोड रेजिस्टेंस. ऑपोजिट होता है इन केस ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस. ट्रांस रेजिस्टेंस में जो हमारे पास इनपुट होता है रेजिस्टेंस होगा दैट इज वेरी वेरी लो देन सोर्स रेजिस्टेंस, एंड लोड रेजिस्टेंस सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो लोड रेजिस्टेंस से बहुत स्मॉल होता है. देन हमारे पास समरी क्या है कि हमारे पास जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है उसमें इनपुट क्या होती है वोल्टेज एंड आउटपुट क्या होती है वोल्टेज. रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है. करंट एम्पलीफायर जो हमारे पास करंट होता है इनपुट होता है, आउटपुट क्या होती है हमारे पास करंट. क्या, और हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है दैट इज लो, आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई. Then second part is transconductance amplifier. Transconductance amplifier क्या होता है, हमारे पास इनपुट वोल्टेज होती है, करंट हमारे आउटपुट करंट होता है, resistance is very very high and output resistance is very very high. Trans resistance amplifier में क्या होता है, current is very very sorry input is current, output is voltage, resistance is low, input resistance is very very low, output resistance is also very very low. Then second part, next we are going to move upon. अब हमारे पास आता है कि हम कितने तरीके के हमारे पास फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं. वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, शंट, करंट सीरीज. ठीक है, करंट सीरीज क्या होता है, सीरीज और शंट में डिफरेंस क्या थी. सीरीज और करंट में डिफरेंस क्या है. तो सीरीज होता है कि हमारे पास, शंट मतलब होता है पैरेलल, सीरीज मतलब होता है कि साथ साथ. ठीक है, शंट मतलब होता है हमारे पास पैरेलल, सीरीज का मतलब होता है सीरीज में हमारे पास जो करंट होता है दैट रिमेन्स द सेम, शंट में हमारे पास जो करंट होता है दैट डिवाइड. तो उसी के बिहाफ पे हमने आगे से टॉपिक करना है. फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है वोल्टेज सीरीज. वोल्टेज सीरीज में क्या है, हमारे इस पार्ट में जो हमारे पास आर एस होगा दैट विल बी आर आई वन प्लस ए बीटा, और आर नॉट क्या होगा, आर नॉट वन वन प्लस ए बीटा. ठीक है, और इस पार्ट में हमारे पास वोल्टेज शंट में क्या होगा, वोल्टेज शंट में ऑपोजिट होगा, क्या होगा, आर एफ तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, और आर ऑफ क्या होगा, आर ऑफ विल बी आर नॉट वन प्लस ए बीटा. तो आप देख सकते हो शंट में क्या है, ये पैरेलल में है, ये क्या है सीरीज में है, यहाँ पे पैरेलल में है, ये हमारे पास पैरेलल में है. तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपने डायग्राम बना ड्रॉ करना है. देन सेकेंड पार्ट इज कि हमारे पास करंट शंट और करंट सीरीज में क्या है. करंट शंट में क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट होगा, आउटपुट पार्ट क्या होगा, दैट विल बी इन सीरीज, आउटपुट पार्ट क्या होगा, दैट विल बी इन सीरीज. राइट, तो हमारे पास जो इनपुट आर एफ होगा दैट विल बी आर आई वन प्लस ए बीटा, और इस केस में करंट की सीरीज के केस में क्या होगा, आर आई sorry RIF is equal to RI into 1 plus A beta. ROF R naught 1 plus A beta. ROF is equal to R naught 1 plus A beta. The next part is कि हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या पड़ता है. रेजिस्टेंसेस वही समरी मैंने प्रोवाइड किया कि यहाँ पे हमने उसको पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आपके पास जो हमारे पास अब रह गया, क्या रह गया कि हमारे पास जो समरी में क्या है, वोल्टेज शंट में जो आर एफ होता है वो क्या होता है, आर आई इज डिवाइड बाई वन प्लस ए बीटा. आर ऑफ क्या है, आउटपुट फीडबैक रेजिस्टेंस. ठीक है, आर नॉट वन प्लस ए बीटा. करंट शंट में क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर आई वन प्लस ए बीटा. आर ऑफ क्या होगा, आर नॉट वन प्लस ए बीटा. वोल्टेज सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज सीरीज में होगा आर एफ
आर आई वन प्लस ए बीटा, आर ऑफ आर नॉट वन प्लस ए बीटा। तो इन सीरीज में क्या होगा, आर एस इज इक्वल टू आर आई वन प्लस ए बीटा, आर ऑफ आर नॉट वन प्लस ए बीटा। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा कि क्या है। इसके साथ साथ आपके दो टॉपिक रहते हैं, वो क्या होगा, एक तो gain margin and face margin, that is from the second unit, and we are completed with their unit.